Good morning, everyone. Today I'm here with the chapter number 1, The Portrait of a Lady, and this chapter is written by Khushwant Singh. And this is a real story of Khushwant Singh when he spent some time with his grandmother, and after some time he had to leave the village and he had to go to the city house to his parents with his grandmother. Then the connection between them was broken. So this chapter is depend on this one, and it's written by Khushwant Singh. Okay, so let's start the chapter. Some expressions are given here before the chapter. The thought was almost revolting. So listen carefully. I'm telling you the meaning of this one. The thought was almost revolting. The thought that the author's grandmother was once young and pretty raises a doubt in the mind of the author. He finds it too hard to believe. That's why it was revolting. Next is an expense of pure white serenity. It's important. It refers to the calm, peaceful, and serene character and conduct of the author's grandmother. She is compared to the peaceful winter landscape in the mountains because his grandmother was always wearing the white sari. A turning point, it is very important point from the chapter. It refers to the point where the author's relationship with his grandmother changes drastically after they move to the city house. So next is accepted her seclusion with resignation. When she accepted her seclusion with resignation. This shows the author's grandmother's passive submission to her secluded life after she gradually loses touch with her grandson. Next is a veritable bedlam of chirping. It refers to the noise, confusion, and chaos caused by the chirping of the sparrows that is scattered and perched around the author's grandmother. She was spending some time with the birds for half an hour. Frivolous rebukes. It refers to the casual and light-hearted rebukes of the grandmother to the sparrows. She always abused the sparrows to enjoy with them. Next is the sagging skins of the dilapidated drum. It points to the shabby and deteriorated condition of the drum that he beated when her grandson came from the foreign after completion his studies. So chapter start करते हैं. These are the expressions and you have to explain these expressions in your own language. Okay. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. मेरी दादी माँ दूसरों की दादी माँ की तरह बूढ़ी थी. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. और मैं जब से उन्हें जानता था 20 सालों से मैंने उन्हें ओल्ड और रिंकल्ड ही देखा है. जब ओल्ड एज आ जाती है तो बॉडी पर रिंकल्स आने लग जाते हैं स्किन पर. पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड. और लोग कहते थे कि ये कभी यंग और प्रिटी हुआ करती थी एंड हैड इवन अ हस्बैंड, और इनके भी हस्बैंड थे. दैट वाज हार्ड टू बिलीव. लेकिन ये सब कुछ बिलीव करने के लिए बहुत ज़्यादा टफेबल पॉइंट था. क्यों? क्योंकि उसने तो हमेशा अपनी दादी माँ को बूढ़ा ही देखा है. माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. फिर वो अपने दादाजी की फ़ोटो देखता है जो कि ड्राइंग रूम में मेंटल पीस के ऊपर, जो उनकी अंगीठी थी उसके जस्ट ऊपर उनके दादाजी की फ़ोटो लगी हुई थी. ही वोर अ बिग टर्बन. उन्होंने एक बहुत ही बड़ी पगड़ी पहनी हुई थी. एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स. और ढीले ढीले कपड़े पहने थे. हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट. और उनकी जो लंबी लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी वो उनके चेस्ट को कवर की हुई थी. एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old. और वो करीबन 100 साल बूढ़े लग रहे थे. He did not look the sort of person who would have a wife or children. और वो ऐसे लग ही नहीं रहे थे कि उनके बच्चे या बीवी होंगी. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. बल्कि वो तो ऐसे लग रहे थे जैसे कि उनके पोते और पड़पोते हैं बहुत सारे.
एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी, और जैसा कि मेरी दादी माँ के लिए मैं बात करूँ कि वो यंग और प्रिटी थी, तो द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग, तो ये थॉट ना मुझे रिवॉल्ट कर देने वाला था. मीन्स ही वॉज नॉट एक्सेप्टिंग दिस वन रियलिटी. शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड. और हमारी दादी माँ खुशवंत सिंह इज सेइंग हियर कि उनकी दादी जो थी वो हमेशा उन्हें उन गेम्स के बारे में बताया करती थी जब वो छोटी थी तो खेला करती थी. That seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. और ऐसा लगता था. absurd means होता है मीन्स बहुत अगली, बहुत भद्दा, मीन्स बैड आप कह सकते हो. और अनडिग्निफाइड का मीनिंग होता है अनरेस्पेक्टेबल. मीन्स कि खुशवंत सिंह और उसके भाई बहन जब ये कहानियाँ सुनते थे अपनी दादी से, तो उन्हें एक मतलब परियों की कहानियाँ या फिर प्रॉफिट संतों की कहानियों जैसी लगती थी. जो अक्सर उन्हें वो दादी बताया करती थी, वो एक कहानी की तरह उन्हें लगा करता था. She had always been short and fat and slightly bent. उनकी दादी माँ जो थी वो दिखने में फिजिकली कैसी थी? उनकी हाइट कम थी, थोड़ी सी हेल्दी थी और उनकी कमर झुकी हुई थी. हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर. और उनके फेस पर झुर्रियाँ आई हुई थी और क्रिस क्रॉस सेक्शन में रिंकल्स आए हुए थे. नो, वी वर सर्टेन दैट शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर. और हम हमेशा यही समझते थे कि जैसा हमने हमारी दादी को देखा है वो हमेशा ऐसी ही रही थी. ओल्ड, बूढ़ी, सो टेरिबली ओल्ड, बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी, दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, इतनी बूढ़ी कि वो इससे बूढ़ी हो ही नहीं सकती. एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years. और 20 सालों से वो ऐसी ही थी, 20 सालों से वो सेम उनको नज़र आ रही थी. शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, वो कभी भी बहुत सुंदर नहीं हो सकती. बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी. She hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop. वो अपनी झुकी हुई कमर को बैलेंस करने के लिए एक हाथ अपनी कमर पर रखकर चला करती थी, थोड़ा सा हॉबल्ड करते हुए. हॉबल क्या होता है? लड़खड़ाते हुए चला करती थी अपने स्पॉटलेस वाइट क्लॉथ्स पहने हुए. वो हमेशा वाइट कलर के क्लॉथ्स पहना करती थी. एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ अ रोजरी. और उनका दूसरा हाथ कहाँ होता था? उनकी जो रोजरी थी, उनकी जो माला थी, उनके बीट्स पर, मनकों पर माला फिरती रहती थी. हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटिडली ओवर हर पेल. और उनके पीले चेहरे पर, पेल मीन्स येलो, और उनके पीले चेहरे पर आंटीडीली आप बहुत अच्छे से इसका मीनिंग जानते हो कि मीन्स जो चीज़ सेटल ना हो, मतलब ऐसे ही उनके बाल उल्टे सीधे ऐसे फैले हुए थे. और उनके बालों को किससे कंपेयर किया गया है? सिल्वर लॉक से कंपेयर किया गया है. उनके बालों को सिल्वर कलर के धागों से कंपेयर किया गया है. यस, उसी से कंपेयर किया गया है. और उनका फेस जो था वो पेल था, पकर्ड फेस था. पकर्ड मीन्स क्या होता है? झुर्रियों वाला. रिंकल्ड फेस, पकर्ड मीन्स रिंकल्ड फेस. एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर. और वो हमेशा अपने लिप्स को मूव करती रहती थी कंटिन्यूसली, कॉन्स्टेंटली. और उनकी प्रेयर जो होती थी इनऑडिबल होती थी, उन्हें आप सुन नहीं सकते थे. ठीक है. येस, शी वॉज ब्यूटिफुल. हाँ, वो बहुत सुंदर थी. शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स. और वो विंटर लैंडस्केप जो है माउंटेन्स पर, उनकी तरह नज़र आती थी. जैसे माउंटेन्स पर ऊपर बर्फ़ जम जाती है तो वो इतने सुंदर लगते हैं, ऐसे ही जो ब्यूटी थी, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, यही सेम ब्यूटी जो थी उनकी दादी माँ की थी. ब्रीदिंग पीस एंड कंटेनमेंट, जो कि बिल्कुल शांत, और कंटेनमेंट, सेटिस्फैक्शन जिसके अंदर था. बहुत ही शांत थी उनकी दादी. माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स. मैं और मेरी दादी बहुत अच्छे दोस्त थे. माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर. मेरे पेरेंट्स ने मुझे उनके साथ छोड़ दिया था. व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब वो सिटी में रहने के लिए गए तो.
एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और हम दोनों एक साथ थे. शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, वो मुझे सुबह उठाया करती थी. एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए रेडी किया करती थी. She said her morning prayer in a monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and would get to know it by heart. और वो मुझे स्कूल के लिए जब भी रेडी किया करती थी तो वो रेडी करते टाइम एक अपना मॉर्निंग का एक भजन मुझे गाकर सुनाया करती थी. वो मतलब एक बोरिंग सा, आप बोल सकते हो उसके लिए वो बोरिंग सॉन्ग सा लगता था. मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, मोनोटोनस मीन्स होता है जो आपको बोर कर दे, बोरिंग. तो वो ऐसा ही भजन गाया करती थी जब उसे नहलाया करती थी और उसे ड्रेसअप किया करती थी, इस होप में कि मैं वो सब कुछ सुनूं. मीन्स खुशवंत सिंह उन प्रेयर्स को सुने, उन सॉन्ग्स को सुने एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, और उसको बाय हार्ट बहुत अच्छे से समझ भी ले. आई लिसन, मैं सुनता था. बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ बहुत पसंद थी. बट नेवर बॉदर्ड टू लर्न इट, लेकिन कभी मैंने उसको सीखने की, समझने की कोशिश नहीं की. देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट, फिर वो मेरी वुडन स्लेट लेकर आती थी. विच शी हैड ऑलरेडी वॉश, जिसे वो ऑलरेडी धो चुकी थी. एंड प्लास्टर्ड विद येलो चॉक, और उसको उस वुडन स्लेट को उन्होंने येलो चॉक से, मुल्तानी मिट्टी से प्लास्टर भी कर दिया था. टाइनी अर्थन इंक पॉट, एक छोटी सी इंक की बॉटल थी. एंड अ रेड पेन, एक रेड पेन था. टाई देम ऑल इन अ बंडल, उन्होंने उन सारी चीज़ों को एक बंडल में टाई कर दिया. एंड हैंड इट टू मी, और मुझे थमा दिया. आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक, काफ़ी अच्छा ब्रेकफास्ट करने के बाद, स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर, जो बासी चपाती थी उन पर थोड़ा सा घी लगाकर, बटर लगाकर, एंड शुगर, और उसके ऊपर शुगर स्प्रेड करके, वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल जाते थे. शी कैरेड सेवरल स्टेल चपातीज, और वो कुछ काफ़ी सारी बासी चपातियाँ लेकर आती थी अपने साथ में एक्स्ट्रा. विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, किसके लिए लेकर आती थी? विलेज के डॉग्स के लिए, जो उन्हें रास्ते में मिला करते थे. माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी, मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ स्कूल जाया करती थी. बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल, क्योंकि स्कूल जो था वो टेम्पल से अटैच्ड था. द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और वहाँ के पुजारी जो थे वो हमें अल्फ़ाबेट सिखाया करते थे, मॉर्निंग प्रेयर सिखाया करते थे. वाइल द चिल्ड्रन सैट इन द रोज ऑन आइदर साइड ऑफ द वरांडा सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर इन अ कोरस, और जो वरांडा में बच्चे बैठे हुए होते थे वो एक ही धुन में वो रिपीट किया करते थे उन्हीं अल्फ़ाबेट्स को. माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, और मेरी दादी माँ जो थी वो अंदर बैठती थी और जो स्क्रिप्चर्स थे, ग्रंथ थे, उनको पढ़ा करती थी. When we had both finished, जब हम दोनों का काम ख़त्म हो जाता था, we would walk back together, हम दोनों वापस चले जाते थे एक साथ. This time, village dogs would meet us at the temple door. इस टाइम विलेज डॉग्स हमें टेम्पल के डोर पर मिलते थे. They followed us to our home growling, और घर तक हमारा पीछा करते थे, गुर्राते हुए, लड़ते हुए. With each other, आपस में. किस लिए लड़ते थे? For the chapatis we threw them, क्योंकि जो चपाती हम उन्हें डालते थे खिलाने के लिए, उन चपातियों के लिए ही वो आपस में लड़ा करते थे और हमारे पीछे पीछे आते थे. When my parents were comfortably settled in the city, जब मेरे पेरेंट्स comfortably सिटी में सेटल्ड हो गए, they sent for us, तो उन्होंने हमें बुला लिया. Sent for means called. That was a turning point in our friendship, और यही था उनकी लाइफ का, उनकी फ्रेंडशिप का टर्निंग पॉइंट, क्योंकि अब वो दोनों एक दूसरे से अलग होने वाले थे. Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me, कि वो दोनों एक ही रूम शेयर करते थे, लेकिन फिर भी वो, उसकी दादी उसके साथ स्कूल नहीं जाती थी. आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, क्योंकि अब खुशवंत सिंह इस इंग्लिश स्कूल में मोटर बस के थ्रू जाता था, बाय मोटर बस. देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, गलियों में कोई डॉग्स नहीं थे, कोई भी डॉग नहीं था. एंड शी टुक
to feeding sparrows in the courtyard of our city house. और इसीलिए उन्होंने हमारे सिटी में जो नया घर था उसके आंगन में बैठकर वो बर्ड्स को खिलाने लगी. As the years rolled by, we saw less of each other. जैसे जैसे साल बीतते गए हम एक दूसरे को बहुत कम मिलने लगे. For some time she continued to wake me up. कुछ टाइम के लिए तो उन्होंने मुझे उठाना कंटिन्यू किया and get me ready for school, और स्कूल के लिए रेडी भी किया. When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. और जब भी कभी मैं स्कूल से वापस आता था तो मुझसे पूछा करती थी कि आज टीचर ने तुम्हें क्या पढ़ाया. आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग. तो मैं आकर उन्हें कुछ इंग्लिश वर्ड्स और कुछ वेस्टर्न साइंस और लर्निंग के बारे में बताता था. द लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में बताता था. आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में बताता था. द वर्ल्ड बीइंग राउंड, ये वर्ल्ड राउंड है, इसके बारे में बताता था. दिस मेड हर अनहैप्पी. तो ये सब कुछ सुनकर वो परेशान हो जाती थी, अनहैप्पी हो जाती थी, सैड हो जाती थी. शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, क्योंकि वो अब उसके उन लेसन्स में उसकी हेल्प नहीं कर सकती थी. शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल. और वो इंग्लिश स्कूल में जो भी चीज़ें पढ़ाई जाती थी बच्चों को, उन पर वो बिलीव ही नहीं करती थी. एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड. और वो इतना परेशान हो जाती थी, डिस्ट्रेस मीन्स डिप्रेस्ड हो जाती थी, ये जानकर कि उनके स्कूल में गॉड के बारे में एंड द स्क्रिप्चर्स और स्क्रिप्चर्स के बारे में बच्चों को पढ़ाया ही नहीं जाता था. One day I announced that we were being given music lessons. और एक बार मैंने उन्हें बताया कि हमें म्यूज़िक लेसन्स भी दिए जाते हैं. She was very disturbed. वो और ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई. To her music had lewd association. क्योंकि उसके लिए ये जो म्यूज़िक है वो उस चीज़ से सेटिस्फाई ही नहीं थी, क्योंकि म्यूज़िक जो था वो उसके लिए किस टाइप से था. इट्स अ ल्यूड एसोसिएशन. मतलब उसे लगता था कि ये बच्चों के लिए नहीं है, बच्चों को सिखाने लायक ये चीज़ नहीं है. ये जो है ल्यूड है. ल्यूड मीन्स होता है दुष्ट, जो बेकार लोग करते हैं. एसोसिएशन मतलब होता है कि जो कम्युनिटी होती है, संगति, मतलब बुरे लोगों की संगति के लिए ही ये होता है, अच्छे लोगों के लिए नहीं होता. वो ऐसा सोचती थी. इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्डलॉट्स. हार्डलॉट्स होती हैं प्रोस्टिट्यूट्स, वो लेडीज़. और वो कहती है, वो सोचती थी कि ये म्यूज़िक जो है वो हार्डलॉट्स के लिए एंड द बैगर्स, और बैगर्स के लिए मोनोपोली है. मोनोपोली मीन्स राइट, कि इन दोनों का ही अधिकार है. एंड नॉट मींट फॉर जेंटल फोक, ये अच्छे लोगों के लिए नहीं है. She said nothing but her silence meant disapproval. उसने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उसकी साइलेंस से डिसअप्रूवल शो ज़रूर हो गया. She rarely talked to me after that. और उसके बाद वो मुझसे बहुत कम बात किया करती थी. When I went to the university, और जब मैं यूनिवर्सिटी में गया, I was given a room of my own. तो मुझे अपना कमरा दे दिया गया. The common link of friendship was snapped. अब उनके बीच में जो कॉमन लिंक था फ्रेंडशिप का वो भी टूट गया. My grandmother accepted her seclusion with resignation. और उसने with resignation इस seclusion को accept कर लिया. She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. और वो पूरा टाइम व्हील को स्पिन किया करती थी, और स्पिनिंग करते टाइम वो किसी से भी बात नहीं करती थी, बहुत रेयरली बात किया करती थी और उसको स्पिनिंग को छोड़ा करती थी. फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सुबह सूरज उगने से लेकर और सूरज के छिपने तक, शी सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग. और वो क्या करती थी, सुबह से लेकर शाम तक अपने व्हील को स्पिन करते हुए बैठी रहती थी. एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और प्रेयर्स को रिसाइट किया करती थी. Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows. सिर्फ दोपहर ही ऐसी होती थी जब वो अपने उस व्हील को छोड़ा करती थी. किस लिए? स्पैरोज को फीड कराने के लिए. While she sat in the veranda breaking the bread into the little bites, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirpings. और जब वो उनको ब्रेड के टुकड़े तोड़ तोड़ कर, छोटे छोटे टुकड़े करके फेंका करती थी, तो काफ़ी सारी सैकड़ों बर्ड्स वहाँ आकर इकट्ठी हो जाती थी और वहाँ आकर बहुत ही ज़्यादा शोर करती थी. और इतना शोर करती थी कि ऐसे लगता था कि यहाँ एक पागल खाना बन चुका है. मतलब बहुत ज़्यादा शोर होता था वहाँ पर.
वेरिटेबल मतलब रियल, और बैडलम होता है बहुत ज़्यादा शोर। ओके, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर हुआ करता था। सम केम, कुछ आती थी बर्ड्स, एंड पर्स्ड ऑन हर लेग्स, और आकर उसके लेग्स पर बैठ जाती थी। पर्स्ड होता है सेट। अदर्स ऑन हर शोल्डर, और कुछ उसके शोल्डर पर बैठ जाती थी। सम इवन सेट ऑन हर हेड, और कुछ आकर उसके हेड पर बैठ जाती थी। शी स्माइल्ड बट नेवर शूड देम अवे, वो स्माइल किया करती थी लेकिन उन्हें कभी भी उड़ाती नहीं थी। शूड मतलब होता है उनको भगा देना। ओके, इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, और ये हाफ आवर उसकी लाइफ का हैप्पीएस्ट हाफ एन आवर होता था। When I decided to go abroad for further studies, जब मैंने फर्दर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड जाने का सोचा, तो आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, तो मैं श्योर था कि मेरी दादी बहुत अपसेट हो जाएगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, मैं 5 सालों के लिए दूर रहूँगा। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और उनकी एज में तो उसे कोई बता भी नहीं सकता। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी माँ को बताया जा सकता था। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो सेंटिमेंटल नहीं थी, इमोशनल नहीं थी। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन। मेरी दादी माँ मुझे छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन भी आई, लेकिन उसने ना तो कुछ बात की और ना ही अपना कोई इमोशन मुझे शो किया। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उसके लिप्स जो थे अभी भी प्रेयर में मूव कर रहे थे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, और उसका माइंड भी प्रेयर में खोया हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ अ रोजरी, और उसके फिंगर्स जो थी वो उसकी माला जप रही थी। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड, साइलेंटली उसने मेरे माथे पर किस किया। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिस्ड द मॉइस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, और जब मैं वहाँ से गया तो मैं चेरिस्ड, बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। मीन्स आप चेरिस्ड का मीनिंग आप ये भी कर सकते हो कि बहुत ही अटेंशन के साथ में होपफुली कुछ मिला था उसे, क्योंकि उसे लग रहा था कि उनके बीच में जो ये फिजिकल कांटेक्ट है उसका मॉइस्ट इम्प्रिंट, ये एक साइन है, जो लास्ट साइन है उनके बीच फिजिकल कांटेक्ट का। उसे लग रहा था कि ऐसे हम कभी मिल नहीं पाएंगे दोबारा। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम, 5 साल के बाद मैं वापस आया। एंड आई वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन, और वो मुझे स्टेशन पर ही मिली। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वो एक भी दिन बूढ़ी नहीं दिख रही थी, जैसी पहले थी वैसी ही आज भी थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, और वर्ड्स के लिए उसके पास कोई भी टाइम नहीं था, कुछ भी बोलने के लिए टाइम नहीं था। एंड वाइल शी क्लास्प्ड मी इन हर आर्म्स, और जब उसने मुझे अपनी बाहों में भरा, आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, तो मैं उसकी प्रेयर्स को रिसाइट करते हुए सुन सकता था। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, और मेरे पहुंचने के पहले दिन भी, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज, उसका हैप्पीएस्ट मोमेंट जो था वो उसकी स्पैरोज के साथ में ही था। whom she fed longer, जिन्हें वो बहुत टाइम से खिलाती आ रही थी। and with frivolous rebukes होता है मीन्स कंटिन्यूसली उनको गालियाँ देते हुए, बिना मतलब। ओके, उनको वो सुनाती रहती थी। बट शी लाइक्ड देम मोस्ट। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, शाम को उनके अंदर एक चेंज आया। शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रेयर नहीं की। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग, और एक पुराना ड्रम लिया और गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलैपिडेटेड ड्रम, और वो कंटिन्यूसली जो ड्रम था, सैगिंग स्किन वाला मीन्स बहुत ही डिलैपिडेटेड ड्रम, बहुत ही पुराना सा ड्रम जिसकी स्किन जो थी बहुत सैगिंग ढीली हो चुकी थी, उसको वो थम्ड बजाती जा रही थी, बीट कर रही थी। एंड सेंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और वो होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स का होम कमिंग सॉन्ग जो होता है वो गा रही थी। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, और हमें उन्हें ओवर स्ट्रेन होने से मनाना पड़ा, मतलब उन्हें ज़्यादा टेंशन ऐसे नहीं लेनी चाहिए थी इस एज में, तो उन सब लोगों ने उसे मनाया। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, और यहाँ खुशवंत सिंह जो है वो ये कहते हैं कि वो पहला टाइम था जब
मैंने मेरी दादी को प्रेयर ना करते हुए देखा। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल। अगली सुबह वो बीमार हो गई थी। इट वॉज अ माइल्ड फीवर, हल्का सा बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, और डॉक्टर ने हमें कहा कि ठीक हो जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी माँ कुछ अलग तरीके से सोचती थी। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, उन्होंने हमसे कहा कि उनका अंत आ चुका है। शी सैड दैट, और उन्होंने ये भी कहा कि सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर, कि कुछ ही टाइम पहले, द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, कि कुछ ही टाइम है उनके पास में और उनकी लाइफ का जो लास्ट चैप्टर है और उनका उसका क्लोज हो जाएगा, उनका लास्ट चैप्टर भी क्लोज हो जाएगा, सिर्फ उसके कुछ टाइम पहले का टाइम उसके पास है। शी हैड ओमिटेड टू प्रे, और इसीलिए उन्होंने अपनी प्रेयर को रोक दिया। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, क्योंकि वो हमसे बात करने के लिए अपना एक भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी, थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी, वो बस उनसे बात करना चाहती थी। वी प्रोटेस्टेड, लेकिन हमने इसका प्रोटेस्ट किया। बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने हमारे प्रोटेस्ट को इग्नोर कर दिया। शी ले पीसफुली इन बेड, वो शांति से बेड पर प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, प्रे करते हुए और अपनी माला को जपते हुए लेटी रही। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, कि हम कुछ सस्पेक्ट करते उससे पहले ही, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उसके होठों ने मूव करना बंद कर दिया। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और उनकी लाइफलेस फिंगर्स जो थी उनसे उनकी माला गिर गई। अ पीसफुल पालर स्प्रेड ऑन हर फेस, और उनके चेहरे पर एक पीलापन आ गया। पीसफुली पालर, पीसफुल जो येलो फेस था, उस येलो कलर था उनके फेस पर आ गया। एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड, और हम जानते थे कि वो अब मर गई हैं। शी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, we lifted her off the bed and as is customary laid her on the ground and covered her with a red shroud, और हमने उन्हें बेड से उठाया और जैसा कि कस्टम में है उन्हें उठाकर ज़मीन पर रखा और फिर हमने उन्हें रेड श्राउड से कवर कर दिया। श्राउड क्या होता है? कफन। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, कुछ देर विलाप करने के बाद, वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल, हमने उन्हें वहाँ अकेले छोड़ दिया ताकि उनके फ्यूनरल की जो भी अरेंजमेंट्स हैं वो हम कर सकें। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम, शाम को हम उनके कमरे में गए विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, उनके लिए जो अर्थी थी उसको लेकर हम वहाँ उस रूम में गए ताकि हम उनका जो क्रीमेटेड है, जो उनका अंतिम संस्कार है वो हम कर सकें, उनका फ्यूनरल कर सकें। तो उस टाइम द सन वॉज सेटिंग, सूरज छिप रहा था, एंड हैड लिट हर रूम, और उनका रूम पूरा रोशनी से भरा हुआ था, एंड वरांदा, और पूरा वरांदा उसमें सूरज की रोशनी आ रही थी, विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, उस गोल्डन लाइट की जो रेज हैं उससे रूम और वरांदा भरा हुआ था। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कर्टयार्ड, हम कर्टयार्ड के आधे रास्ते ही रुक गए। क्यों? क्योंकि ऑल ओवर द वरांदा, क्योंकि पूरे वरांदा में, एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड, वो वरांदा से लेकर उसके रूम तक जहाँ वो लेटी हुई थी, डेड थी, एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्राउड, और उनकी वो स्टिफ बॉडी को रैप किया हुआ था रेड श्राउड में, वहाँ तक थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज दैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, हज़ारों बर्ड्स जो थी वो फ्लोर पर बिखरी हुई थी। देयर वॉज नो चर्पिंग, कोई भी बर्ड चर्पिंग नहीं कर रही थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमें बर्ड्स के लिए बहुत बुरा लगा। एंड माई मदर फेच सम ब्रेड फॉर देम, इसीलिए मेरी माँ उनके लिए कुछ ब्रेड्स लेकर आई। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, उन्होंने उस ब्रेड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसे मेरी दादी माँ किया करती थी। एंड थ्रू इट टू दैम, और तोड़कर उनके सामने फेंक दिया। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन स्पैरोज ने ब्रेड को देखा तक नहीं। वैन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स ऑफ, जब हम लोग अपनी दादी माँ के कॉप्स को उठाने लगे, लाश को उठाने लगे, डेड बॉडी को ले जाने लगे, दे फ्लू अवे क्वाइटली, वो चुपचाप सब बर्ड्स उड़ गईं। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप द बर्ड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, और अगली सुबह जो स्वीपर है उसने ब्रेड क्रम्स को उठाया और डस्टबिन में डाल दिया।
This is the story of Khushwant Singh. So read the chapter again. Thank you so much, students. I hope you understood the chapter.